It's really a battle against time, the most challenging rescue operation that we've witnessed in the past couple of years. In Uttarkashi, the 41 construction workers are still trapped under the debris in Silkyara. And now the auger machine, the sophisticated drilling machine that was being used to cut through the debris and reach the construction workers, has broken down inside the tunnel, which is why reports now suggest that drilling by hand, or digging by hand rather, is what is likely. Manual drilling is likely to take place from today. Meanwhile, the army has also joined the rescue operations. This as that auger machine broke down inside the tunnel. Of course, the 41 laborers, the 41 construction workers have been trapped inside for almost 2 weeks now. And meanwhile, the other big development is that the vertical drilling has begun at the tunnel collapse site. What actually transpired today was the fact that the blades of the auger machine deployed to drill through the debris of the collapsed tunnel got stuck and broke down in the rubble. The auger machine failed, and we're having a lot of technical difficulties getting the auger out from the pipe. That's going much faster now. This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. Once we've got the auger out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. As you know, we're about less than 10 metres away, but it's as if it could be 1,000 kilometres away, because we still don't exactly know what's there. We don't know if it's girders, we don't know if it's machines. We've used ground penetrating radar, we've looked ahead, we think we know what's there. But this mountain has shown us that just when we think we know, we don't. So we're being very conservative, making sure no one gets hurt. We don't want to jeopardise the men on the other side as well. बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की, तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। तो उससे अगर 15 मीटर हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि ये लगभग अगले कुछ 2 दिन में ये ड्रिलिंग हो जाना चाहिए। हमारा ये है। वैसे एक मशीन 40-45 मीटर ही ड्रिलिंग कर पाएगी, दूसरी मशीन भी आ चुकी है जिसकी हायर कैपेसिटी है, और 40 मीटर के बाद वो थोड़ा सा, हालांकि 60-70 घंटे ही लगेंगे ड्रिलिंग पे एक्चुअली, लेकिन ड्रिलिंग रिग को भी बदलना पड़ेगा, शायद मशीन को भी बदलना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है, 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। इफ नो हर्डल कम्स, डॉक्टर नीरज ने बहुत सही यहाँ मुझे याद दिलाया, क्योंकि हर जो हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं, और आप लोग का इसी तरह सहयोग रहा सबका, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा जो प्लान है वो मैंने बताया SJVNL का। दूसरा हमने ऑप्शन रखा है कि RVNL भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है, उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए, बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा। और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए, और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। PRO ने यहाँ साफ सफाई की थी, एक्सकवेशन किया था, ताकि
आरवीएनएल को ये जगह ठीक से साफ सुथरा मिले, सही पॉइंट पे मिले। तो बेडिंग या कंक्रीट बेडिंग का काम शुरू हो गया है और हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो आरवीएनएल कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। फिर से मैं ये बात जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर नीरज मुझे याद दिलाने से पहले ही कि अगर कोई बाधाएं नहीं आए, अगर कोई अड़चने नहीं आए, पत्थर आ जाते हैं, अलग किस्म की दिक्कतें आती है, तो ये सब ना हो। और ऑफ कोर्स हमारा ये पहले से ही है कि हम एक ड्रिफ्ट टनल भी बनाए अलग से, तो वो फेस ऑफ दी मक पे ही काम होता है, वो उसका भी हमने डिजाइन वगैरह तय कर लिया है। उसमें जो फ्रेम्स लगेंगे 2 मीटर बाई 2 मीटर के हमने उसके डिजाइन और ड्राइंग्स ओके कर लिया है। और ये जब जो भी फ्रेम लगेगा इसमें, उसकी फैब्रिकेशन करने का भी हमने आदेश दे दिया है। उसकी भी लगभग कुछ शुरुआत हो गई है। जब सही मौका हमें लगेगा कि अब इसका काम मतलब फेस ऑफ द मक पे हमें काम शुरुआत करना होगा, वो भी हम शुरू करेंगे। तो इन सब वेरियस ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं। और टीएचडीसी का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइड से ही वो हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहां भी दिक्कतें आ रही हैं, वहां भी काफी अड़चने हैं। वो वहां का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहे। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सब हम ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जस्ट ए मिनट आप लोग पहले अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा अब आपको बताया कि अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोग सभी समझ गए कि जैसे टनल है, टनल में अगर इधर से हमारा नॉर्मल चल रहा है, अपोजिट बड़कोट साइड से भी हो गया, ऊपर से भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी हो रहा है, तो सभी ऑप्शंस पे काम स्टार्ट कर दिया गया है। सीइंग दैट डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स वी आर फेसिंग, लेकिन इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे श्रमिक बंधु अंदर हैं, जो हमारे 41 भाई अंदर हैं, उनका क्या हालचाल है, उनकी क्या स्थिति है। मैं ये चाहूंगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट, अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो एसडीआरएफ के पास इक्विपमेंट होते हैं, एसडीआरएफ की टीम ने किया हुआ था। अब बीएसएनएल की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है, वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। पहले भी उनका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनको एक साइकेट्री किया था, आज फिर से वो प्लान किया गया है कि आज फिर से उनसे एक बार दोबारा वो बात करेंगे। सो इट इज लाइक कि भाई वो सभी जो हमारे हैं वो सकुशल हैं, उनके लिए हम सिर्फ भगवान से प्रे करें, हम सभी इस चीज के लिए होपफुल रहें एंड वी शुड प्रे फॉर देम एंड एज उनको करेंगे। वो डॉक्टर अभी एक बार फिर आज बात करेंगे, तो शाम वाली आज जैसे कल भी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया था, तो हम एक शाम का पीसी और करेंगे लेट इवनिंग में, सो दैट एटलीस्ट वी विल ब्रीफ। क्योंकि कल तो आप लोग सभी जैसे कल की न्यूज मिलने के बाद आप लोग भी रिलैक्स होने चले गए थे, तो आई थिंक आज इवनिंग में वी विल लाइक टू, दैट इज ओके बिकॉज एवरीबडी इज देयर सिंस लाइक एंड वी आर होपिंग, हम डेली हम बेसिस पे यही हमारी होप बन रही थी एंड सभी को ये उम्मीद थी कि अभी आज रात को फिर कल सुबह, फिर आज रात को फिर कल सुबह टाइप से चल रहा था। सो वी शुड ऑल अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड होप एंड प्रे फॉर देम। तो वो हाँ जी, अभी जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि 1 by 1 जितने क्वेश्चंस कहेंगे हम ले लेंगे, कोई जल्दी हमें नहीं है। वी विल बी हियर फॉर
मोर हाफ एन आवर एक साइड से डिसाइड कर लीजिए, या आप लोग सभी कहते हैं लेडीज फर्स्ट करना है, आप एक एंड से करना चाहते हैं, इधर से कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों से रिक्वेस्ट, जैसा कि एक वो करेंगे, आप सबके क्वेश्चंस वी विल टेक अप एवरीबॉडीज क्वेश्चन प्लीज। जो मैनुअल हम जो ड्रिलिंग करेंगे के बाद, ये आर्मी के हैंडओवर होगा, कौन कौन आ रखा है इसमें, मतलब स्पेशलाइज्ड टीम है कोई, ये क्या है अंदर? आप कौन से वाला कहना चाह रहे हैं? जो 800 mm पाइप के अंदर होगा, जो लास्ट में होगा, जो मैनुअल 800 mm पाइप में होगा, उसके लिए ऑलरेडी जो एक पता है ना आपको, माइंस वगैरह में काम करते हैं, इसके लिए टिपिकल एक लेबर जो काम करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, यू कैन सी द एक्सपर्ट रेट माइनर्स, वो बुला रखे हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, वो यहाँ पर है। वो जो कंपनी काम करने वाली है, उन्होंने जो काम करने वाली ट्रेंचलेस कंपनी है, उन्होंने ही उनको बुलाया है, क्योंकि दे वर्क विद देम, उनको पता होता है कहाँ पर है, तो उन्होंने उनको अरेंज किया हुआ है। आर्मी का क्या रोल रहेगा? सभी एजेंसीज का रोल अलग है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक एजेंसी का स्पेसिफिक रोल है। आर्मी हर जगह हमारे को सहयोग कर रही है, एनडीआरएफ सब जगह कर रही है, बीआरओ आपने देखा सबसे पहले बीआरओ ने किया है। All right, so the key takeaway from that press briefing, of course, is the fact that vertical drilling is likely to take 4 more days. Of course, no clear timeline set, but the vertical drilling has begun and Army has also joined the rescue operations.